Hello friends, welcome to our YouTube channel Revan Kangne. Myself Sri Revan Kangne sir. Today we are going to learn standard 8 first lesson, that is the rational and irrational number. Dear students, already we have to learn in standard 7, that is the natural number. We have to learn about natural number. ये नेचुरल नंबर क्या होता है ये हमको मालूम होना चाहिए. What is the natural number? Natural number starting from 1, that is the 1, 2, 3, 4 dash up to unlimited. It is called as natural number. Now second things, remember that one thing is also natural number denoted by n. Then whole numbers. What is whole numbers? Whole numbers denoted by W, and in whole number also there is 1, 2, 3, 4 dash up to unlimited. But only one, that is the 0, is extra number as compare natural number. होल नंबर में ये 0 आता है, 0, 1, 2, 3, 4, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, that is all these numbers are whole number. Then third type is integer. What is integers? Integers denoted by I, and in integer there is 0, 1, 2, 3, all positive numbers and all negative numbers, -3 dash means at right hand side to the 0 there is positive number, and left hand side to the 0 that is a negative number. In integers all positive, 0 and negative numbers are included. Then rational number. What is a rational number? A rational number means the number of the form. The number of the form m upon n are called a rational number. But there is a one thing, remember, denominator, that means n is not equal to 0. n 0 नहीं होगा. अगर n 0 होता है तो ये नंबर नहीं रहता, ये रैशनल नंबर नहीं होता. Therefore remember students, natural number denoted by n, और नॅचरल नंबर को मराठीमध्ये आपण त्याला नैसर्गिक संख्या म्हणतो. होल नंबर डिनोटेड बाय डब्ल्यू, त्याला आपण डब्ल्यू ने डिनोट करतो, अँड मराठीमध्ये त्याला पूर्ण संख्या म्हणतो. त्याच्यानंतर इंटिजर आय, त्यालाच पूर्णांक संख्या म्हणतो. त्याच्यामध्ये 0 पॉझिटिव्ह नंबर आणि निगेटिव्ह नंबर इन्क्लूड होतात. रॅशनल नंबर म्हणजे काय? परिमेय संख्या. या परिमेय संख्या म्हणजे काय? m अपॉन n च्या फॉर्म मध्ये ज्या संख्या असतात त्यांना काय म्हणायचं? परिमेय संख्या. बट n इज नॉट इक्वल टू 0. हा डिनोमिनेटर हा काय नको आहे? 0 नको आहे. देअर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0. नाउ what is the example of a rational number? Suppose we have to write any number, 9. 9 is a rational number. How? The denominator of 9 is 1. Therefore this form become m upon n. Here the numbers of the form m upon n are called a rational number. We have to already learn this definition. Now one thing also remember, m and n are the integers. ये इंटीजर्स हो गए. मतलब इंटीजर्स में माइनस भी आता है, मतलब निगेटिव नंबर भी आता है, पॉजिटिव भी आता है और 0 भी आता है. Therefore 9 upon 1 is a integer. Suppose we have to write only -5. It is also integer because -5 is an integer and किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है. Therefore -5 upon 1 is also
or rational number. 9 upon 2 is also rational number. 1 minus 1 upon 2 is also a rational number. That means this is all examples. All these examples are the rational numbers examples. Okay. Each and every rational number we can show on a number line. Now we have to solve practice set 1.1. What is the question? Show the following numbers on a number line. Draw separate numbers lines for each example. मतलब ये जो नंबर हमें दिए, ये नंबर हमें नंबर लाइन पर शो करने दिखाने हैं. तो ये कैसे दिखाते हैं ये मैं बताने जा रहा हूँ. देखिए आपके पास कंपास होता है, कंपास का यूज इसमें करना है. अगर कंपास होता है तो अच्छी बात है. अभी मेरे पास कंपास नहीं है, मैं ऐसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. टेक फर्स्ट वी हैव टू टेक 0, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट. मराठीत त्याला आरंभ बिंदू म्हणतात. वी हैव टू टेक 0. नाउ at the right hand side at 0 there is a all positive number, and left hand side to the 0 are all negative number. Now we have to show all these three numbers on a single line. Here remember that by using compass we have to take small distance like this. Okay, these all distance are same. We have to mark by using compass. अब मेरे पास कंपास नहीं है तो मैं डायरेक्टली इसे ड्रॉ कर रहा हूँ. आप ऐसे डायरेक्टली नहीं करेंगे, आप कंपास का यूज करेंगे और फिर ये नंबर्स शो करेंगे नंबर लाइन पर. इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, एक सिंपल मेथड आपको मैं बताने जा रहा हूँ. ओके, नाउ first we have to show 3 upon 2. Okay, now this is a denominator is 2, so this number is 1 upon 2, this number 2 upon 2. 2 upon 2 means this is a 1 and that is a 3 upon 2. ये नंबर मैंने अभी शो किया. दिस इज अ 3 upon 2. Okay, now we want to show 5 upon 2. 3 upon 2 तक आ गए थे. 4 upon 2. 4 upon 2 मतलब ये कितना हुआ 2, because 2 ones are 2, 2 twos are 4. Then 5 upon 2. ये जो नंबर है ये है 5 upon 2. Okay, now at left hand side this one minus 1 upon 2, minus 2 upon 2, that means minus 1, minus 3 upon 2. This is a number. This point indicate the number minus 2 upon minus 3 upon 2. इस तरह है ये नंबर हमें शो कर सकते हैं. अगर हमें जो नंबर सपोज ये नंबर हमें डायरेक्टली यहाँ 1 भी लिख सकते हैं. 2 upon 2 मीन्स कितना होता है 1. ये 4 upon 2 मीन्स कितना होता है 2. हम ये भी डायरेक्टली लिख सकते हैं. ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा, दैट इज वन. रिमेंबर दैट वन इंपॉर्टेंट थिंग्स. ये 1 यूनिट जो डिस्टेंस है इसको हमने 2 से डिवाइड किया, मतलब 2 मार्किंग से हम इसे डिवाइड करेंगे. अगर डिनोमिनेटर 3 होता है तो 3 मार्क से ये यूनिट डिस्टेंस हम 3 मार्किंग करके उसको डिवाइड करेंगे. 3 टुकड़ों में इसको डिवाइड करेंगे. अगर इधर 4 होता है तो 4 टुकड़े में इसे डिवाइड करेंगे. लेकिन डिवाइड करना ये जरा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए मैं फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, नंबर लाइन पर मार्किंग कर रहे हैं स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस से, और उसे हम इस तरह से लिखते हैं और हम नंबर शो करते हैं. लेट अस सी सेकंड एग्जांपल. वी हैव टू शो 7 upon 5 minus 2 upon 5 minus 4 upon 5 ऑन अ नंबर लाइन. फर्स्ट वी हैव टू टेक 0. ओके, और 0 के बाद हम that is we have to take sufficient distance for marking in this way. We have to mark same part on this number line, then we will show the given number. Okay,
this marking should be done by compass. Okay, now we have to show 7 upon 5. How to show 7 upon 5? That means this is a 1 upon 5, denominator 5, 2 upon 5, 3 upon 5, 4 upon 5, 5 upon 5. That means this is our unit distance. मतलब ये यूनिट डिस्टेंस के 0 to 1, दिस इज अ 1. ये 0 to 1 जो है, ये जो डिस्टेंस है उसके हमने 5 पार्ट्स कर दिए. ओके, क्यों 5 पार्ट्स किए? तो डिनोमिनेटर कितना है? 5 है, इसलिए. ओके, उसके आगे की मार्किंग 6 अपॉन 5, देन 7 अपॉन 5. दिस इज आवर पॉइंट 7 अपॉन 5. देखो ये यूनिट डिस्टेंस है 0, ये यूनिट डिस्टेंस है. इसको हमने 5 लाइन से क्या किया? डिवाइड किया 5 पार्ट्स, 1 2 3 4 एंड 5. ओके, देन we have to show the number 7 upon 5. Now we have to show minus 2 upon 5. This is 0. This is minus 1 upon 5, minus 2 upon 5. This number is minus 2 upon 5. Then मुझे minus 4 upon 5 भी इस पर शो करना है. तो how to show this? Minus 3 upon 5 and minus 4 upon 5. This is a minus 4 upon 5. Okay, in this way we have to solve second example. Let us see third example. We have to show this number minus 5 upon 8 and 11 upon 8 on a number line. We have to take 0. First we have to take 0 at middle at the given line. First we have to draw this line. Then we have to take 0. मतलब हमने पहले लाइन निकाली, उसके बाद हमने क्या किया? 0 लिया. 0 के राइट में क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट में क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर. ओके, अभी जो यूनिट डिस्टेंस लेंगे हम, मतलब कोई भी, मतलब इधर 1 लिया, इधर 2 लिया, दिस इज आवर यूनिट डिस्टेंस. उसके कितने पार्ट्स करने हैं? 8 पार्ट्स से हमें ये यूनिट डिस्टेंस क्या करना है? कन्वर्ट करना है. लेकिन ये थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए मैं क्या करता हूं, अभी स्मॉल डिस्टेंस पर मार्किंग करता हूं. ओके, 1. Okay, like this way, we are left hand side, we are also marking in this way. Okay, now we have to show minus 5 upon 8. Therefore minus 5, that means we have to going to left hand side from point 0. This one minus 1 upon 8, minus 2 upon 8, minus 3 upon 8, minus 4 upon 8. अगर ये नंबर शो भी नहीं करता, नो प्रॉब्लम. ठीक है, अगर हमें ये नंबर शो नहीं करना है तो कैसे करेंगे? माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, दिस वन माइनस 5 अपॉन 8. अगर आपको लगता है ये नंबर नहीं लिखने है तो आप नहीं भी लिख सकते. ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए इसे लिखा है. ओके, अभी मुझे 11 अपॉन 8 इस पर शो करना है. ओके, this one 1 upon 8, 2, 3, 4 upon 8, 5 upon 6, 7, 8, 8 upon 8 means this हो गया 1. Then 9 upon 8, 10 upon 8, and this one is 11 upon 8. This number becomes 11 upon 8 and this number become minus 5 upon 8. Okay, in this way, अगर आपको ये नंबर नहीं लिखना है, जो भी लिखने हैं, अगर ये नहीं लिखने तो मत लिखो, नो प्रॉब्लम. ठीक है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा कि 1 क्यों आता है. 8 upon 8, that means 1. Now we have to show 13 upon 10 and minus 17 upon 10 on a number line. How to show? Let us see. Let we have to take here 0. Okay, now take, by using compass we have to take same distance and mark it continuously.
नाउ वी वांट टू शो 13/10, मतलब क्या करना है, 1 यूनिट के कितने, 1 यूनिट जो डिस्टेंस होगा उसको कितने में डिवाइड करेंगे हम, 10 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। मतलब अगर ये 1 यूनिट डिस्टेंस है, इसके हम कितने पार्ट करेंगे, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन दिस वे हम 10 पार्ट डिवाइड करेंगे। मतलब ये कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, इसलिए पहले मार्किंग की। नाउ वी हैव टू शो 13/10, दिस इज अ 1/10, 2/10, 3 4 5 6 7 8 9 10, this is a 10/10, that means this become 1, and therefore this is our unit distance. Okay, now we have to show 13, 11 12 13, 13/10, this is a 13/10. Okay, this is a 1, here we can write 1 also, this is a 13/10. ये 1/10 लेना जरूरी नहीं, आपको समझने के लिए मैंने लिखा। ओके, नाउ -17/10 हमें लिखना है। ओके, -17/10 मतलब देखो, -1/10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, जहाँ भी -17 आएगा, -17/10, दैट पॉइंट शुड बी -17/10। ओके, अभी इधर जगह नहीं है तो ये पॉइंट में आपको आपके लिए छोड़ता हूं, आप अपनी नोटबुक पर ये पॉइंट शो कीजिए। नाउ क्वेश्चन सेकंड, वी हैव टू आस्क, ऑब्जर्व द नंबर्स लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन। ये लाइन हमें ऑब्जर्व करनी है और उसके बाद इस क्वेश्चन के हमें आंसर देने हैं। इससे पहिले मी आपको बताना चाहूंगा, त्याच्या आधी मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की 0 आणि 1 हे झालं युनिट डिस्टन्स, याचे किती पार्ट केले, 1 2 3 4, दॅट मीन्स ये 1/4 2/4 3/4, दिस इज अ 4/4, दैट मीन्स 1। ये हमें पहली बात समझनी चाहिए कि यूनिट डिस्टेंस के कितने, ये डिस्टेंस मतलब जो यूनिट डिस्टेंस दिया है, मतलब ये यूनिट पार्ट दिया है, उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, कितनी पार्ट्स को किती भागामध्ये त्याला विभागला आहे, याच्यावरून आपल्याला उत्तर देतात। विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, पॉइंट बी कौन सा, पॉइंट बी जो है ये कौन सा पॉइंट इंडिकेट करता है, देखो ये हुआ 1/4, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, दैट मीन्स -1, ये हुआ -3 -4/4, that means 1. Okay, -5, -6, -7, -8, -9, -10, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट इंडिकेट करता है, -10/4, मतलब इसका आंसर है -10/4। और ऑल्सो वी कैन राइट, और ये 2 से, अगर ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड है, देखो दोन्ही नंबरला 2 ने भाग जातो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ओके, therefore we can also write -5/2. which point indicates the number 1 and 3/4, देखो 1 यूनिट ये पॉइंट इंडिकेट करता है पूरा 1 यूनिट, इसके बाद 3/4 मतलब 3 पार्ट्स, ये 4 में से 3 पार्ट्स, ये 1 तो पूरा हो गया, ठीक है, 1 ये पॉइंट पूरा हो गया, 3/4 मतलब ये 1 पॉइंट हो गया। उसके बाद 1 2 3 ये हो गया 3/4, इसके बाद का मतलब ये पूरा हो गया 1 3/4, दैट मीन्स ये नंबर विच पॉइंट, मतलब पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट सी, पॉइंट सी indicated by, indicate the number 1 3/4. Okay, state whether the statement the point D denoted the number 5/2 is true or false, मतलब ये नंबर 5/2 है, ये सच है कि गलत है, हमें बताना है। ठीक है, 5/2 देखते हैं। अभी ये क्या हुआ, 1/4 2/4 3/4 4/4, ये हो गया
5/4, ये हो गया 6/4। एक मिनट, जस्ट मिनट। ये देखो, यहां से अगर हम काउंट करते हैं तो ये हो गया 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। 8/4 मतलब 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, ये 2 हो गया। ओके, देन इसके आगे देखो, यहां तक तो हमने काउंट कर दिया। कैसे हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डी का मतलब 10/4। 10/4 मतलब ये नंबर जो है ना, ये डी क्या शो करता है? 10/4 मतलब 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 5/2 आंसर आता है। देखो, तो ये आंसर जो है ये क्या है? ट्रू है, ट्रू है, बिकॉज दिस नंबर इज 10/4, दैट मीन्स 2 2 5 जार 10, 5/2, ये 5/2 है। इसे हम दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं, लेकिन ये सिंपल तरीका है समझाने का, तो आप इसी तरह सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ओके।